रिकॉर्ड ऑप्शन में है बेटा ये? हाँ चलो, हाँ चलो। सो ऑल एंड एलटी है ना? चलो स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics. Very important area and scoring topic for your NEET examinations, beta. So let us try to define what exactly is of your thermodynamics part of relation. See, thermodynamics is actually the branch of the physics in which we'll be dealing about the conversion of the heat into other forms of your energy. It may be a mechanical energies converting into the heat, into the electric, into the magnetic, anything that given condition, but certain external process is called as of your thermodynamics. So what is thermodynamics? The branch of science which deals with the conversion of your what? Heat energies into your other forms of your energy, or vice versa is called as of your thermodynamics. So I can say thermodynamics is, it deals with conversion of heat, conversion of your heat into other forms of energy, or vice versa, ante converting the energy into your heat part of relations. Okay, so that is about your thermodynamics part of relation. वेटिंग रूम क्यों आ रहा है यार? क्या चलो, so what is the thermodynamics beta? So thermodynamics deals with the conversion of the heat into other forms of energy, or vice versa part of relation, and we'll be using the quantities like pressure, volume and temperature being used to describe the state of the state. So the relation among this pressure, volume and as well as of a temperature is called as of your equation of your state. So I can write here the quantities like pressure, like your pressure P, comma, volume V, and temperature capital T, etc. are used to describe the state of system, your system part of relation. Okay, so if the state of the system changes in such a way that any of this one, pressure, volume, temperature, etc. changes, then such type of a process is called as of your thermodynamics part of relation. So what is the thermodynamics process beta? If the state of a system changes okay, if the state of your system is being changing in such a way that either your pressure, volume and the temperature are being changing, the process is called as of your thermodynamic process part of relation. Clear? Yes sir. Yes sir. सभी लोग admit हो गए, चलो. Okay, so before we enter into this topic, let us try to define some terminologies better. The first one is work done by a gas and their sign convention. Work done by a gas. अरे वो क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या लिखे थे? Thermal equilibrium is total absolute temperature is directly proportional बोल के 0 ही लिखे ना? Yes sir. Okay, चलो. So work done by your gas part of relation. So what is the work done by your gas process beta? Work done कैसा निकालोगे आप? Work done is calculated by the formula work done is equals to integral of your P into your dV, volume V1 and volume V2, or else I can say that area under the curve, that is integral of your y into your dx,
will also gives me the work done. That also gives me what? Work done. That is integral of your P into your dV. That will be equal to your work done. That will be equal to your work done part of relation. Okay, now so work done is equals to how much for me? Work done is equals to your pressure into change in volume. Work done is equals to pressure into change in volume, or area under your pressure and volume. Area under your pressure and volume will also gives me the work done. Will also gives me the work done. ये था first point, इसमें याद रखने का, to calculate the work done by gas. The next one is area under your PV graph. Area under your PV graph gives work done. Gives your work done. ठीक है ना? तो इसका साइन कन्वेंशन बता दो जल्दी से. मान के चलो ये अपने पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है बेसिकली, and this one is your y axis. On y axis I am taking pressure, on x axis I am taking your volume V. ठीक है? Now see, if I am taking a gas which is going from point A, इस तरह से from point A it is going like this to your point B. मान के चलो ये point A है and ये हो गया point B part of relation. I'm going from your point A to the point B. That is one process right now. The another one is I am going from here. ये हो गया point C to मान के चलो point D तक जा रहा. Then I am coming from this one, E to your F. E to your F. ऐसा. ठीक है? So now when I am going from A to B, if you see this graph very carefully, see this one. So if I close the graph right now like this, and here also this point and this one. So this is the area enclosed. This is your area enclosed part of relation. इस area enclosed में तो है यहाँ पर when I'm going from A to B, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? कोई बता सकता है क्या? I'm going from A to B, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. So this one volume is increasing. In this one volume is increasing. Volume यहाँ पर क्या हो रहा है? Volume is increasing. I'm writing with an arrow mark. तो इसका वर्क डन कितना बन जाएगा बेटा? वर्क डन विल बी इक्वल टू पॉजिटिव. ठीक है ना? तो इसके अंदर वॉल्यूम क्या है बेटा? यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो. देन उसके बाद अगर इसका ग्राफ मैं ले रहा हूँ, हाँ बेटा ऐसा कांस्टेंट हुआ सर. यहाँ देखो बेटा, सी से डी जा रहे हो तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो वही है ना बेटा, ऊपर 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 जा रहे हैं, तो ये तो वाई एक्सेस वैसे कांस्टेंट है ना बेटा. जी सर. तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया. गोइंग फ्रॉम योर सी टू डी पार्ट ऑफ रिलेशन, यहाँ पर सी के पास मान के चलो 10 मीटर क्यूब है, तो ऊपर कहीं पर भी जाओ अप टू इंफिनिटी तो आपके पास वॉल्यूम उतना ही रहेगा ना. यस सर. तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो. तो अब यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या हो रहा है? E टू F जा रहा हूं मैं, इस तरह से इसका ग्राफ ऐसा है बेसिकली, ये इस तरह से जा रहा है. E टू F जा रहा हूं मैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज. यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर था, उसके बाद स्लोली कम होते होते यहाँ पर आ गया. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? डिक्रीज. नेगेटिव. क्लियर है? यस सर. क्लियर है? यस सर. हाँ, तो क्लियर है ना सभी को? यस सर. यस सर. इसका आंसर बताओ. मान के चलो इफ आई एम टेकिंग ए ग्राफ, this one is your pressure and this one is your volume. ठीक है? I am having a graph in between like this. ये एक point है और ये एक point है. I am coming from here to here like this, and I am coming from here to here like this. Sorry. Okay, and I am going from here to here like this. Okay, तो ये हो गया मेरा point A और ये हो गया point B और ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी. ओके, तो यहां से जब जा रहा हूं तो मान के चलो ये पूरा एक्स है, ये पूरा भी मेरे पास एक्स है, और इसके अंदर जो वॉल्यूम भरा हुआ इसके पार्ट में, इस पॉइंट में ये पार्ट है मेरे पास वाई. तो वर्क डन कितना होगा? व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन निकालो. फर्स्ट वन वया पाथ ए सी बी.
वर्क डन फ्रॉम योर ACB कितना आ जाएगा? तो वर्क डन फ्रॉम योर ACB विल बी इक्वल टू वर्क। तो मैं अगर इस तरह से जा रहा हूँ इसके अंदर, वर्क डन फ्रॉम ACB, ऐसे जा रहा हूँ मैं, ACB, so that will be equal to ACB is equals to, मान के चलो W1 ले रहा हूँ, that is equals to work done by me to go from your A to C plus work done by me to go from your C to B। ओके ना, A to C जा रहा हूँ, फिर C to B जा रहा हूँ। वर्क डन फ्रॉम योर ACB इज वर्क डन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट पार्ट ऑफ रिलेशन। इसका भी मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ, इसका मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ Y पार्ट ऑफ रिलेशन से। तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो यहाँ पर देखो बहुत क्लियरली, तो ये पार्ट हो गया मेरे पास एक इस तरह से, और इसका एक पार्ट हो गया इस तरह से, ठीक है ना। वो दूसरे पेन से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, एक दूसरा आया। तो वर्क डन फ्रॉम A to ACB is nothing but I am representing by W1, that is equals to ACB। A to C जब जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम, इसका एरिया देखो, एरिया अंडर दिस वन इज गिवन एज Y, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? A to C जा रहा हूं, A के पास वॉल्यूम यहाँ पर था, उसके बाद C पे यहाँ पर आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया, Negative. कम हो रहा सर। नेगेटिव, माइनस नेगेटिव होगा सर। Y। देन फ्रॉम C to B जब जा रहा हूं, C to B जब जा रहा हूं right now, what is happening from C to B? Can you need right now? पॉजिटिव सर। So this will be your positive, C to B it will be your positive। तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव x प्लस ऑफ योर y, x प्लस ऑफ योर y। बताओ क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक है ना, C to B मतलब ये पूरा आएगा, C Yes, sir. से मतलब यहां से और B तक मतलब यहां पर, सो ये पूरा कितना, ये पूरा मेरे पास x है और नीचे वाला y है, सो इट इज x प्लस ऑफ योर y। तो वर्क डन फ्रॉम योर ACB कितना आया बेटा, प्लस x आया, ये प्लस y माइनस y क्या कट जाएगा, तो वर्क डन कितना आया, Plus X. वर्क डन फ्रॉम A to B कोई बता सकता है? A to B, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा हूं मैं सीधा, पॉइंट A से पॉइंट B, पॉइंट Zero. A से पॉइंट B, जीरो। वर्क डन फ्रॉम योर ADB, वर्क डन फ्रॉम योर A to D देन D to B, यानी ये हो गया वर्क डन टू मूव फ्रॉम A to D प्लस डन बाय मी टू मूव फ्रॉम योर D to B। A to B मतलब ये होगा ना बेटा, A to B मतलब ये होगा ना, A to D मतलब ये वाला Plus Y, sir. राइट नाउ, तो ये वाला है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, Increases. इंक्रीजेस। A to D जब जा रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना है मेरे पास Y प्लस वर्क डन फ्रॉम D to B कितना हो रहा है, देखो यहाँ पर D to B कितना है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सो दिस विल बी योर x माइनस ऑफ योर x प्लस ऑफ योर y, Y. ठीक है ना। Yes, sir. तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या? सो दिस विल बी इक्वल टू y माइनस x माइनस y, तो ये कितना आया, माइनस x, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस चले जाएगा, सो वर्क डन फ्रॉम योर A to B विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, माइनस ऑफ योर x पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है? Yes, sir. चलो, Sir, minus X plus Y कैसा हुआ? कौन सा बेटा? Sir, second में ऐसे ये माइनस है ना बेटा, ये तो पूरा नेगेटिव है ना सर, वो माइनस मल्टीप्लाई करे तो होता ना सर? कौन सा बेटा? सर आप ये y माइनस एक्स माइनस वाई बोले, लेकिन उसके ऊपर एक इक्वेशन में y प्लस माइनस एक्स प्लस वाई बोले, तो 2y माइनस एक्स हाँ, होता। तो दिस वन इज ये वर्क डन फ्रॉम A to D कितना है देखो, वर्क डन फ्रॉम A to D कितना है देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका वर्क डन है कितना, x सॉरी y, और यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है ना बेटा। दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी Minus व्हाट, x minus y. माइनस ऑफ योर x प्लस y, इसको ऐसा लिख दो ना, तो सॉरी, तो ये हो जाएगा ऐसा, तो इसमें x क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो ना बेटा, इसके अंदर D से Minus x लेके minus ये तक जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x होगा। दिस वन इज योर माइनस x प्लस ऑफ योर y, y तो प्लस ही है ना, ठीक है। yes sir.
अभी मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, Yes, sir. तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस होगा, Yes. isn't it? तो यहाँ पर कितना अभी माइनस है ना, ये माइनस प्लस ऑफ योर एक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस। बताइए ना बेटा। नहीं सर, दोनों प्लस प्लस है ना, कौन सा प्लस है बेटा? ब्रैकेट से पहले भी प्लस ही है, फिर y को भी प्लस ही है, तो प्लस 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 ही होना ना। ग्राफ में देखो, a to b, दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी y ना, ये तो y है, जी ये पूरा x है, ये जी पूरा ठीक है। ठीक है ना, यानी d to b मेरे पास माइनस x है, ये पूरा नेगेटिव होता, सॉरी, तो इसको मैं ऐसा कर लेना, दिस विल बी इक्वल टू योर, ऐसे लिख सकता हूँ, दिस वन इज x प्लस ऑफ योर y, एंड ये पूरा टोटल है माइनस। Yes, sir. That's right. ठीक है ना, तो Yes, ये sir. बन गया ठीक है मेरे सर। पास y प्लस माइनस, ये हो गया माइनस ऑफ योर x प्लस दिस माइनस विल y बी इक्वल टू माइनस y, Minus, sir. Minus x. ये प्लस और ये माइनस माइनस चले गया, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, माइनस ऑफ योर x। x So work done from your A to DB will be equal to how much बेटा, माइनस ऑफ योर x। Okay. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. So I hope you got an idea how to calculate right now the work done. चलो नेक्स्ट वन चलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस यानी जहां पर स्टार्ट हुई वहां पर ही वापस आना। सो इफ आई एम टेकिंग द ग्राफ बिटवीन प्रेशर वर्सेस योर वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस योर वॉल्यूम, ठीक है ना, तो ये इसको यहां पर ये हो गया प्रेशर और ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका बताओ, अगर मान के चलो मैं एक छोटा सा पार्ट इसमें ऐसा ले लिया और एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पर ऐसा ले लिया, ओके, ये मेरे पास x और ये भी मेरे पास x और इसके नीचे का एरिया y और इसके नीचे का एरिया y, ठीक है ना। वर्क डन, तो मान के चलो आई एम टेकिंग वन पॉइंट हियर ये और वन पॉइंट हियर इज नथिंग बट ऑफ योर b, ओके, इसके अंदर दिस पॉइंट इज नथिंग बट c एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट ऑफ योर d। एरो मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन में ये इस डायरेक्शन में जा रहा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा, ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. तो मैं इसमें अगर वर्क डन फ्रॉम योर ए बी, ये अगर लिखूं ए बी फिर ये, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा इस तरह से ऐसा, ओके। ए टू बी जा रहा हूं तो वर्क डन बाय मी इज ए टू बी, कैसा लिख रहा हूं बहुत जरा ध्यान से देखो बेटा। देन वर्क डन फ्रॉम योर बी टू योर ए, बी टू योर ए, वर्क डन फ्रॉम योर ए टू बी मतलब कितना बेटा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मतलब ये पार्ट का एरिया आता और उसके साथ अंदर का जो एरिया अंदर है, का भी पार्ट। ठीक है ना। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या लिखोगे बताओ, ए टू बी मतलब ये कर्व आ रहा है ना बेटा, ऊपर वाला कर्व, यानी उसके नीचे का पूरा एरिया लोगे आप, X plus y. सो ये हो जाएगा x प्लस ऑफ योर प्लस y। y। क्लियर है, यस सर यस सर। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ये वाला ए टू बी मतलब ऊपर वाले कर्व से जितना भी एरिया नीचे है ना, पूरा एरिया आप कंसीडर करोगे x प्लस वाई। देन फ्रॉम बी टू ये आ रहे हो, बी टू Y. जब ये आ रहे हो तो क्या हो रहा है, वाई Only y, sir. Minus y. माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पर देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम है ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आ रहे हो बेसिकली, तो ये हो जाएगा माइनस Minus वाई, तो ये कितना आ रहा, x. x। आया समझ में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। वर्क डन फ्रॉम सी डी सी, कोई बता सकता है, सी डी सी कहां से आ रहा हूं, देखो ऐसा जा रहा हूं, ये एरो मार्क इस तरह से, फिर ये ऐसा है,
फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है। C to D जा रहा हूं पहले, तो इसके नीचे का एरिया पूरा ऐसा हो जाएगा। तो इसके नीचे का पूरा एरिया कितना है y, इसको ऊपर का एरिया कितना है x। अब C to D का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जा रहा हूँ मैं, वर्क डन फ्रॉम C to D प्लस वर्क डन फ्रॉम योर, फिर D to C आ रहा हूँ, फिर D से ऐसा घूमते 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 फिर C के पास आ रहा हूँ। तो वर्क डन फ्रॉम C to D कितना हो जाएगा? minus y. हाँ प्लस वाई ना बेटा, C to D Yes, sir, Plus plus y. हो रहा है, C to D sir. प्लस वाई होगा। दिस वन इज योर प्लस वाई। ये प्लस माइनस में गलती करते हो, इसीलिए मैं बहुत सारा डायग्राम्स आप लोग को बता रहा हूँ, छोटे छोटे थिंग्स आप लोग को मिस्टेक नहीं करना, बल्कि समझ में आ रहा है। प्लस माइनस में अगर गलती करे तो पूरा प्रॉब्लम चले जाता है यहाँ पर। तो एरिया अंडर CD, यानी ये जो एरो मार्क है ना, पूरा एरिया का एरिया कितना रिप्रेजेंट किया मैंने, वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो C to D जब जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्लस वाई। उसके बाद D2 यहां पर जा रहा हूं, D2 लेके फिर C से आ रहा हूं वापस। तो क्या हो रहा है, पहले वॉल्यूम घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है। तो ऑब्वियसली क्या हो Minus x जाएगा, minus y. Minus x plus y. माइनस ऑफ योर एक्स, यानी इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर माइनस कर दूं, तो ये हो गया माइनस ऑफ योर एक्स प्लस ऑफ योर वाई हो गया। तो प्लस माइनस वाई हो गया, तो ये हो गया वाई माइनस, ये हो जाएगा एक्स प्लस ऑफ योर वाई। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ये कितना बन जाएगा बेटा, इफ आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट, तो वाई ये माइनस एक्स, ये हो जाएगा कितना माइनस एक्स। तो ये वाई वाई कट जाएगा, तो बचा कितना मेरे पास, Minus Minus x. माइनस माइनस एक्स एक्स। आ गया। Yes, sir. अब इसमें मैं बोलने का पॉइंट क्या था यहाँ पर देखो। सो व्हाट इज माय पॉइंट इज टू मेक यू क्लियर इज फॉर योर पीवी ग्राफ in above diagram I have gone in clockwise and anti-clockwise। देखो I have gone first one in which direction है, कौन सा डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज में गया, फिर Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज में गया। जब क्लॉकवाइज में गया तो वर्क डन कितना आया, पॉजिटिव। Positive. एंटी क्लॉकवाइज में जब गया तो वर्क डन कितना आया, Negative. नेगेटिव। ये पॉइंट मैं आपको बोलना चाह रहा था। फॉर वर्क डन इन योर पीवी ग्राफ, if you are moving in the clockwise, if I am moving in the clockwise, work done should be taken as of your positive। Positive. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जा रहे हो तो वर्क डन शुड बी टेकन एज ऑफ योर नेगेटिव। नेगेटिव। आई Negative. होप यू गॉट दिस आइडिया। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो वर्क डन शुड बी टेकन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वर्क डन शुड बी टेकन एज ऑफ योर नेगेटिव। ठीक है, Negative. चलो अब यहाँ पर Yes, sir. देखो, हम लोग जो ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, पहले मैं आपको मिस्टेक कराऊंगा, उसके बाद फिर आपको करेक्शन कराऊंगा कि हम लोग जनरल मिस्टेक कैसा करते हैं। देखो आप लोग ये मान के चलो, एक ग्राफ दे रखा है मुझे, दिस इज ऑल्सो योर पीवी ग्राफ, दिस इज ऑल्सो योर पीवी ग्राफ। यानी यहाँ पर वाई एक्सिस में वी ले लिया और यहाँ पर प्रेशर ले लिया, और इसमें मैंने आपको ग्राफ इस तरह से दे दिया। ठीक है, सो ये हो गया मेरा ए, और ये हो गया मेरा बी, और मैं जा रहा हूं इस डायरेक्शन। एरो मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यहां से यहां तक गया, इसके अंदर का एरिया x है और इसके बाहर का एरिया y है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका वर्क डन बताओ। वर्क डन इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे, जनरल फॉर्मूला क्या है वर्क डन का बताओ। वर्क डन का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ योर P. p इंटू dv। dv. तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ योर, यहां पर क्या लिखोगे, v इंटू योर dp। ठीक है, Yes, ये हो sir. गया वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर v इंटू dp। डोंट डू इट, ये ब्लंडर है, रॉन्ग है ये, ऐसा नहीं लिखते हम लोग वर्क डन को। वर्क डन इज नेवर रिटन एज इंटीग्रल ऑफ योर v इंटू p इंटू योर dp, कभी नहीं लिखते हम लोग ऐसा। सो प्लीज डोंट ट्राई टू राइट द वर्क डन एज इंटीग्रल ऑफ योर v इंटू योर dp। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो करना क्या है, अब मुझे वर्क डन निकालना है इसके अंदर। वर्क डन फ्रॉम योर a टू b अगर निकालना है तो वर्क डन फ्रॉम योर a टू b एंड b टू a साइक्लिक प्रोसेस में, दैट मींस आई एम गोइंग फ्रॉम योर a टू b प्लस आई एम गोइंग फ्रॉम योर b टू a। व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम a टू b बेटा, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम योर a टू b, तो वर्क डन Clockwise. एरिया ऑफ दिस वन लोगे ना, एरिया ऑफ दिस वन, कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन है ना, इसका एरिया लोगे आप। ठीक है ना, एरिया अंडर योर ए Yes, टू sir. बी, यानी ये कर्व के अंदर जो एरिया है y प्लस y की माइनस y, वॉल्यूम Plus y. इंक्रीज हो रहा है Plus y, डिक्रीज हो रहा है, Plus y. Plus प्लस plus y। y. तो ये हो गया प्लस y।
देन यहाँ पर हो गया प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो घट रहा है, बी से ए पर आ Decreases. रहा हूं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। सो ये हो गया मेरे पास -y. माइनस ऑफ Minus into यूर x plus y. प्लस ऑफ यूर वाई, तो ये बना कितना, ये हो गया Minus प्लस वाई माइनस ऑफ यूर एक्स प्लस ऑफ यूर वाई, यानी ये हो गया Minus x. वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये बना कितना माइनस एक्स, ये और ये कट गया। -x। बात समझ में आई? Yes, sir. अब यहाँ देखो एक बार फिर से एक बार देखो, जब ए से बी जा रहा था, जब ए से बी जा रहा था तो वर्क डन कितना आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? Positive. Positive. पॉजिटिव आया इन द एपी, कौन सी डायरेक्शन में, Clockwise. क्लॉकवाइज में। जब एंटी Clockwise. क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ Negative. नेगेटिव, तो प्रीवियस में क्या था देखो, जब क्लॉकवाइज में जा रहा था वर्क डन पॉजिटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा था वर्क डन नेगेटिव, तो क्या यहाँ पर उल्टा आया, व्हेन आई एम गोइंग इन द क्लॉकवाइज लाइक दिस, वर्क डन शुड बी इक्वल टू हाउ मच, वर्क डन Negative. फ्रॉम योर ग्राफ कितना आ रहा है बेटा, इन योर Negative. वीपी ग्राफ, यहाँ पर लिख देता हूँ, Opposite हो जाता है sir पूरा. अपोजिट होना ना, Yes, sir. Sir. लिख देता हूँ। For VP graph, for your volume versus pressure graph, for your VP graph, work done will be equal to negative. Work done will be equal to negative for your clockwise, Clockwise. and work done will be equal to positive for your anti-clockwise. Clear है? Yes, sir. Clear है? Yes, sir. ये पॉइंट अपने को याद रखना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो वर्क डन जब कर रहे हो बेसिकली, तो व्हाट विल बी द वर्क डन, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव फॉर योर, सॉरी पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नेगेटिव फॉर योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, मान के चलो वी हैव गॉट ए ग्राफ लाइक दिस, और यहाँ पर है प्रेशर P और यहाँ पर है वॉल्यूम V। इसके अंदर मैंने ग्राफ दे दिया आप लोग को इस तरह से, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर है मान के चलो V0, और यहाँ पर चलो ये है 2V0, और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है मान के चलो P0, और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है मान के चलो 2P0। तो अभी डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, ये एरो मार्क में इस तरह से, ओके। और ये पॉइंट ये है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है, और ए पॉइंट डी है। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन फॉर द गिवन प्रोसेस। V0. फाइंड वर्क डन, या फाइंड वर्क डन Minus for P0. गिवन प्रोसेस। आया सभी को? फाइंड द वर्क डन फॉर द गिवन प्रोसेस। कौन सी डायरेक्शन में, ये बताओ पहले, ये कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्वियसली वर्क डन आपको कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। कभी कभी Negative. -P0. कैलकुलेशन बिना करे, अगर 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको नेगेटिव है तो विदाउट कैलकुलेशन यू कैन डू। अगर प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल दे दिया, बहुत डाटा दे दिया, वर्क डन पूछ रहा है, और आपको प्लस माइनस की अगर क्या बोलते हैं वो अहमियत मालूम है, देन विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन यू कैन डू द, यू कैन गिव मी द आंसर फॉर सच टाइप ऑफ ए क्वेश्चन। इसमें पहले देखो मैं आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, सो वर्क डन फ्रॉम योर ए टू बी मतलब इसका एरिया होगा, ये मान के चलो ये y ले रहा हूँ, और ये मान के चलो मैं x ले रहा हूँ। वर्क डन मतलब इसका एरिया, isn't it? That will be equal to how much from your P0 into V0. P0 into V0. तो वर्क डन फ्रॉम योर C to D, वर्क डन into your C to D कितना हो जाएगा? इसका एरिया लेना है पूरा मुझे। तो कौन सी डायरेक्शन में ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। C to D वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम इज बीन डिक्रीजिंग। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ योर 2P0 into V0। 2P0. आया? Yes, sir. Yes, वर्क sir. डन फ्रॉम योर B to C कितना है? 0. 0। वर्क डन फ्रॉम योर D to A कितना है? 0. 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, W net is equals to work done from your A to B, या work done from your B to C, work done from your C to D, plus work done from your D to your A।
तो इसमें क्या क्या जीरो है मेरे पास, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी जीरो है, वर्क डन फ्रॉम डी टू ए जीरो है। तो इसकी वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर पी नॉट वी नॉट, और उसके बाद ये है प्लस माइनस ऑफ योर 2 पी नॉट इंटू वी नॉट। तो हाँ, ये छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू कट रहा है तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। सो इट इज माइनस ऑफ योर पी नॉट इंटू वी नॉट। आया? यस सर। Sir, आया सर। क्लियर है? सर फिर से बोलिए ना सर। फिर से बोलो। जी सर। देखो और एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, देखो नहीं तो आप लोग को और क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 2, यही वाला क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। मैं वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे प्रेशर ले रहा हूँ, और ये हो गया इस तरह से ग्राफ दे रखा है मुझे इसमें, ठीक है। ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट बी, ए पॉइंट सी, ए पॉइंट डी, यानी मैं ए टू बी जा रहा हूँ, बी टू सी जा रहा हूँ, सी टू डी जा रहा हूँ, डी टू ए आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पास प्रेशर पी नॉट, और डी के पास है प्रेशर टू पी नॉट, और ए के पास है मेरे पास वॉल्यूम वी नॉट, और बी के पास है मेरे पास वॉल्यूम वी नॉट। और मेरा क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन। वर्क डन Find नेगेटिव work में अंदर है सर। फाइंड वर्क डन। V naught आता सर। क्या बोले? P naught V V naught naught V naught। positive. पॉजिटिव आ रहा? पता नहीं। नेगेटिव Sorry, negative, negative, negative. I don't know. नेगेटिव में आता ए टू बी बताओ वर्क डन। ए टू बी क्या कांस्टेंट है मेरे पास? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या जीरो होगा? नहीं ना। वर्क Sir. डन फ्रॉम योर ए टू बी विल बी इक्वल टू इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया कितना है? 2v नॉट में से v नॉट निकालो तो ये v नॉट है और ये V p naught. नॉट है, तो एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज p नॉट इनटू v नॉट। आया? यस सर। Yes sir. यस सर। वर्क डन फ्रॉम b टू c कितना आएगा? b टू c वॉल्यूम कांस्टेंट है, b के पास जितना Zero. वॉल्यूम है c के पास भी उतना ही वॉल्यूम है, तो वर्क डन कितना बन जाएगा? जीरो। जीरो। वर्क डन फ्रॉम c टू d, वर्क डन फ्रॉम c टू d, c टू d में वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है, 2v नॉट से v नॉट तक आ गया है, c तो काई की जीरो बेटा। अरे नहीं। बेटा यहाँ पर प्रेशर है, C से D को आ रहे हो आप, वॉल्यूम 2v नॉट से v नॉट को आए तो वॉल्यूम कितना हुआ? 2v नॉट माइनस v नॉट, तो v नॉट हुआ V ना। naught। प्रेशर V कितना naught. है? 2p नॉट, तो ये हो 2p गया naught. माइनस ऑफ 2p नॉट इंटू v नॉट आएगा। Yes sir. इसका एरिया ना बेटा, इसका एरिया होना चाहिए मुझे। तो इसका कितना हो गया? v नॉट, और यहाँ पर कितना है प्रेशर? 2p नॉट, Yes sir. यस तो सर। CD के लिए कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2p नॉट इंटू योर v नॉट। वर्क डन Yes, फ्रॉम sir. योर D टू A कितना आएगा? Zero. जीरो। वर्क डन फ्रॉम D टू A कितना आएगा? Zero, sir. वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट विल बी Zero। इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन कितना बनेगा? नेट वर्क डन बताओ अभी। नेट वर्क डन Minus विल P बी naught इक्वल V टू naught. वर्क डन फ्रॉम योर A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम योर B टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम योर C टू D प्लस वर्क डन फ्रॉम योर D टू योर A। तो इसमें क्या क्या जीरो है मेरे पास बताओ? वर्क डन ड्यू टू योर A टू B तो जीरो नहीं है। वर्क डन फ्रॉम A टू B कितना है? P नॉट इंटू V P नॉट naught है। into V naught. B टू C कितना है? जीरो है, तो ये हो गया Zero. प्लस जीरो, प्लस C टू D कितना है? माइनस ऑफ योर Minus 2 P two. नॉट इंटू V नॉट है, प्लस ये फिर से जीरो हो गया, तो ये हो गया प्लस से जीरो। तो इसका आंसर कितना बना बेटा? ये हो गया P नॉट V Minus नॉट P naught. माइनस 2 P नॉट इंटू V नॉट। छोटे में से बड़ा कट रहा है तो कितना आएगा? माइनस ऑफ योर P नॉट इंटू V नॉट। क्लियर है? Yes sir. Yes sir. क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. चलो, सो दैट वाज अबाउट योर वर्क डन के कैलकुलेशंस। कर लोगे ना? अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेना, एरिया ऑफ सर्किल रहा है तो एरिया ऑफ सर्किल लेना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम रहा है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेना है। अगर टू डिफरेंट रेडियस लेना है तो वर्क डन विल बी पाई इनटू r1 इनटू r2, वो पूरे मैं आपको करवा दूंगा। बट ओवरऑल राइट नाउ रिमेंबर दैट वर्क डन इनटू प्रेशर एंड वॉल्यूम दिए और वॉल्यूम एंड प्रेशर दे तो कैसा करना, ये छोटा सा डिफरेंस मैंने आप लोग को इन डिटेल में करवा दिया। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes sir. क्लियर है ना? Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट वन। Next one is zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamic system. Zeroth law of your thermodynamic system. Okay.
तो देखो बेटा, मान के चलो वी हैव गॉट टू सिस्टम्स। चलो ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम, ओके, ये है और ये बी है, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में रिलेशन लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर ऑफ योर ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ योर बी। मेरे पास एक और एक सिस्टम है, ये हो गया बी और ये हो गया सी, okay. Now here also temperature of the B is equals to temperature of C. अगर इन दोनों को मिलाऊं तो क्या आएगा मुझे बताओ। अगर टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो क्या मैं ए और सी भी इक्वल है बोल सकता हूं क्या? सर A is equals to C आना फाइनल में। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल में, तो ये हो गया ये और ये हो गया सी, okay. That means the temperature of your A will be equal to temperature of your C, isn't it? If A and B are in thermal equilibrium and B is in thermal equilibrium with your C, then A is also in thermal equilibrium with your C part of relation. This is your zeroth law of your thermodynamics. Is that clear? Yes, sir. So that is your zeroth law of your thermodynamic system part of relation. So zero thermodynamic system क्या बोल रहा है basically? If two systems are in the equilibrium, if two systems are in your equilibrium part of relation, then the third system will also be in equilibrium with your first system part of relation. That is known as of your zeroth law of your thermodynamics. Clear है? Yes, sir. चलो, let us try to go for the first law of thermodynamics beta, which is our core area of this complete chapter. This is your first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. First law of your thermodynamics. First law of your thermodynamics, जिसको हम लोग फ्लोट भी बोलते हैं, FLOT, फ्लोट. First law of thermodynamics, and this one is based on, very important है बेटा, this is based on your law of conservation of your of energy. energy. It is based upon your law of your conservation of your energy, law of conservation of your energy part of relation, okay. इसका डेरिवेशन है बेटा बेसिकल कंडीशंस में, लेकिन आपको मैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली अगर मान के चलो कोई भी एक आइडियल गैस ले रहे हैं हम लोग सिर्फ यहाँ पर गैस के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली व्हेनेवर ही गिव्स सर्टेन अमाउंट ऑफ द हीट टू एनी गैस, तो गैस क्या हो जाएगा पहले बताओ? एक्सपैंड होगा, इजंट इट? एक्सपैंड हो रहा है मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब अगर उसके ऊपर कुछ अगर हेवी वेट रखे तो क्या वो उस वेट को भी वो मूव करने की कोशिश करेगा? Yes, sir. Isn't it? So what I can say right now here is whatever the amount of your heat is given to the system, that is been used by itself, and it is also used to do certain amount of your work done. It is also used to do certain amount of your work done part of relation, and it is based on law of conservation of energy. बोल रहा है कि basically अगर when you heat any ideal gas part of relation, the volume will increase. The change in increase in the volume will also do the work done on your system. Yani whatever the heat you are giving to your system, dq will be equal to your certain amount of energy is being utilized by the gas to heat itself. That is the reason internal energy is being increased, and along with that one, that gas is also doing certain amount of work that will be equal to your dw. So dq will be equal to your du plus of your dw. dq is equals to your du plus of your dw part of relation. तो इसके अंदर dq क्या है बेटा? हीट एनर्जी. This one is your heat energy, and du is nothing but what for me? Internal energy. Internal energy. This one is your internal energy, and dw is nothing but what? Work Oh. done. Work done. This is your work done on what? Surrounding. This is your work done on the surrounding. ठीक है? And this is your differential form of your, this is your differential form of your first law of thermodynamics. Clear है बेटा? Yes, sir.
Yes, Okay ना? sir. अब इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो मान के चलो आपको नीट 2021 में सीट आ गई, यू गॉट इनटू द सीट इनटू गुड मेडिकल कॉलेजेस लाइक उस्मानिया और मे बी एम्स वगैरह जैसे जस्ट बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में आ गई। आपने 5 इयर्स अपना एमबीबीएस खत्म किया, फिर उसके बाद आपने फिर अपनी कोशिश करके 2 या 3 साल के अंदर आपने एमडी भी बन गए, और मान के चलो यू हैव बिकम ए रिपीटेड डॉक्टर इन ए वेरी रिपीटेड हॉस्पिटल, जैसा मान के चलो यशोदा, अपोलो जैसे अगर हॉस्पिटल में अगर आप स्टार्ट करोगे वर्किंग, maybe your monthly salary may range somewhere anywhere from your 3 lakhs to 5 lakhs. अब मान के चलो ये आपकी सैलरी है इनिशियली, यानी at the age of maybe some around at 27 and 28 you are getting a salary of like say 3 lakhs or 5 lakhs per month। अगर आपकी सैलरी बन गई, that is a very huge amount of a salary। ये जो सैलरी आपको पे कर रहे हैं वो क्या है, हीट एनर्जी है बेटा, वो क्या है, हीट एनर्जी। अब मान के चलो आपने अपनी को 5 लाख की आपकी सैलरी आ गई, आप क्या पूरा 5 लाख आप पूरा 1 महीने में खत्म करोगे, आप थोड़ा अपने लिए भी सेव करो। अगर स्मार्ट बंदा है तो क्या करेगा, वो थोड़ा बहुत सेव भी करेगा। तो इस 5 लाख में मान के चलो एक वो 2 लाख उसने सेव कर लिया, और 3 लाख ही हैज बीन यूज हिज पर्सनल थिंग्स, यानी घर के लिए हो या कुछ भी कंडीशन के लिए हो, ये 3 लाख अगर वो खर्च कर दिया तो 2 लाख तो उसके सेविंग्स में चले गए ना, तो उसका इंटरनल बैलेंस या बैंक बैलेंस क्या बढ़ते जाएगा, एवरी मंथ बढ़ते चले जाएगा। तो ये डीयू जो है ना, ये इंटरनल एनर्जी है, जैसे बैंक का आपका जो अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा कभी कभी बेसिकली। और ये वर्क डन क्या है, आप जो रिमेनिंग अमाउंट है ना आपकी लाइफ चलाने के लिए जो यूज कर रहे हो बेसिकली, ये 3 लाख आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी आपको महीना मिनिमम इतना अगर अमाउंट है तो यू कैन लिव योर लाइफ टू बी अ वेरी सक्सेसफुली, यानी एक अच्छी तरह से आप अपनी लाइफ को ढंग से जी सकते हो। तो मिनिमम आपके पास 3 लाख यूज की रिक्वायरमेंट है, और 2 लाख आपके पास एक्सेस है, तो वो आपका सेविंग्स में चले जाता। कोई एक ऐसा मंथ आएगा जहां पर आपको आपका कुछ फंक्शन है घर में, चलो बड़ा सा कोई फंक्शन है, तो आपको इस 3 लाख से भी ज्यादा अमाउंट जरूरत है, मान के चलो आपको एक 6 लाख की जरूरत है, तो आपके पास तो 3 लाख है, आपने सेव किया था 2 लाख, मान के चलो आपने एक 10 लाख आपने सेव कर लिया, तो आप बाकी के 3 लाख कहां से करोगे, आपके पास तो अभी 10 लाख एक्सेस है बैंक में, तो इसमें से आप बारो करोगे कि नहीं करोगे, तो आप अपनी इंटरनल सेविंग जो है ना उसको आप तोड़ोगे, 10 लाख में से वो यार 3 लाख ले लोगे, जोड़ लोगे, तो आपके 6 लाख आपके पास आराम से आ गए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आपने अपना फंक्शन खत्म कर लिया, और स्टिल यू आर हैविंग राइट नाउ योर एक्सेस ऑफ योर लाइक से 7 lakhs। ठीक है ना। तो अब यहाँ इंटरनल एनर्जी क्या हो रही थी, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा जब आपने जमा किया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी, एक स्टेज आया जहां पर इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, अभी घट रही है। इससे पहले आपके पास कितना था, 10 था, अब 10 से घट के कितना हो गया, 7 हो गया। तो क्या इंटरनल एनर्जी क्या घटने के भी चांसेस है कि नहीं है, है सर। तो साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, तो साइन कन्वेंशन का इंटरनल एनर्जी का एवरी टाइम पॉजिटिव हो सकता है या एवरी टाइम पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, Positive, कभी कभी negative. पॉजिटिव कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, यानी इंटरनल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ऐसा, तो हीट एनर्जी भी क्या पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है कि नहीं। अब मान लीजिए जैसे अभी कोविड का सिचुएशन है, जैसा केसीआर ने डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा केयर करके उन लोगों की सैलरी जो आ रही थी उससे डबल करके उसने सैलरीज 2-3 महीने दिया। तो कोई ऐसे मंथ है जहां पर आपकी हीट एनर्जी आपके एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, आपके अगर 5 लाख की तनख्वाह है तो 2-3 महीने कोविड सिचुएशन इसमें डबल कर देके और एक 5 लाख में ही स्टार्टेड गिविंग यू 10 लाख फॉर 3 मंथ्स। तो आपकी हीट एनर्जी क्या हो गई, महीने का 10 लाख आप कमा रहे हो अभी, तो आपका इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो गई, Yes, sir. हुई कि नहीं हुई। अब उसके हुई, बाद sir. बोला एक 4 महीने के बाद बोला केसीआर, अरे भाई मैंने आप लोग को 3 महीने बहुत एक्सेस दे दिया था, अभी मेरे पास पैसा कम है, मैं भी खजाना कम है गवर्नमेंट के पास, तो आप लोग थोड़ा डोनेट करो, तो आपकी 5 लाख की जगह से मैं अभी आपको सिर्फ 4 लाख ही पे करूंगा एक 3 महीने के लिए। तो आपका क्या इंटरनल एनर्जी, ऑब्वियसली अभी आप गवर्नमेंट डॉक्टर हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपकी अगर 5 लाख की तनख्वाह है तो अभी वो 4 लाख देना शुरू किया, तो 3 महीने के बाद मान के चलो तो ठीक है, तो आपकी जो हीट एनर्जी क्या हो गई अभी यहाँ पर डिक्रीज भी हुई कि नहीं हुई। Yes, sir. हुई. तो क्या हीट एनर्जी भी डिक्रीज और इंक्रीज होने के चांसेस है। यस सर। सो वो साइन कन्वेंशन हम लोग को याद रखना है कि ये कब बढ़ेगा कब कम होगा, इस कंडीशंस को हम लोग अभी क्लियरली लिखते हैं। डी क्यू क्यू क्या बोलते हैं हम लोग, हीट एनर्जी बोलते हैं, डी यू क्यू इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, और डी डब्ल्यू इज ऑल्सो योर वर्क डन। वर्क डन तो हम लोग को मालूम है, वर्क डन डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घटा तो वर्क डन नेगेटिव। क्लियर है, Yes, sir. isn't it? Okay, अब इसको मैं और एक जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो ये Q कैन आल्सो रिटन एज ऑफ योर डेल्टा U प्लस ऑफ योर डेल्टा W। डेल्टा Q इज नथिंग बट व्हाट, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लिखाया था,
व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी प्रोसेस बेटा? बेटा जल्दी से बताओ, NF इंटरनल एनर्जी कैसे लिख सकते हो? ये हो गया डी क्यू का एक फॉर्म है बेसिकली, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो डी क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू डी यू इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे लिखोगे? एफ बाई by टू 2 एन आर NRT. इंटू यूर डी टी लिख सकता हूँ ऐसा, प्लस वर्क डन कैसे ले सकता हूँ मैं? इंटीग्रल ऑफ योर प्रेशर इंटू योर चेंज इन वॉल्यूम, तो इस फॉर्म में भी मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को लिख सकता हूँ। सो डी क्यू हो गया एफ बाई टू इंटू एन आर इंटू डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ योर पी इंटू योर डीवी। एफ क्या है बेटा? एफ इज नथिंग बट ऑफ योर डिग्रीज ऑफ योर Degrees of फ्रीडम, freedom. डिग्रीज ऑफ योर फ्रीडम, ये हो गया अपना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनो अटॉमिक गैस के लिए, फॉर योर मोनो अटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं बेटा? 3। 3 डाई अटॉमिक के लिए, 5 नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए जनरली 5, और ट्राई एटॉमिक जो है ना वो डिपेंड करता है बेसिकली, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ F इज इक्वल्स टू, इट डिपेंड्स ऑन what बेटा? It depends on your linear linear or linear और नॉन लीनियर, तो ये हो सकता है 5 और ये हो सकता है 6। क्लियर है? Yes, sir. yes sir Yes, sir. तो अब इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं बेटा जल्दी से, तो लेट अस राइट द नेक्स्ट साइड हेडिंग साइन कन्वेंशन। अब आप लोग ध्यान से सोच समझ के आंसर्स टकाटक दो कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, डी क्यू पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और गलती नहीं, आराम से डी क्यू इज इक्वल्स टू, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ डी क्यू इज इक्वल्स टू, इसको मैं कैसा एरो मार्क डाल लेता हूँ, ऐसा एरो मार्क डाल के यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास कभी कभी पॉजिटिव है और ये मेरे पास कभी कभी नेगेटिव है। तो कब पॉजिटिव होगा ये देखो, H अगर डी क्यू पॉजिटिव है मतलब क्या करोगे आप? हीट आपको सप्लाइड की गई है, अगर हीट सप्लाइड की है टू द सिस्टम, यानी केसीआर आपकी सैलरी डबल करके दे दिया, तो आपका डी क्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आपकी हीट टेकन है, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम देन डी क्यू विल बिकम फॉर मी व्हाट बेटा? नेगेटिव। negative क्लियर है? देन डी यू, डी यू को भी साइन कन्वेंशन दे रहा हूं मैं बेसिकली, डी यू का भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। डी यू कब पॉजिटिव होगा, डी यू कब नेगेटिव होगा, ये देखो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ। तो ये डी यू किस पे डिपेंड हो रहा है? देखो यहाँ पर डी यू किस पे डिपेंड हो रहा है? देखो टेम्परेचर पे, क्योंकि एफ temperature कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डी यू विल बी पॉजिटिव। Positive. क्लियर है? अगर टेम्परेचर घटा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव। क्लियर है? yes Clear है sir सभी को? Why? Because it is depending on u is equals to your f by 2 n r into your dt. So du is directly proportional to your change in temperature. Clear है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. yes sir थर्ड वन हो गया वर्क डन। सो वर्क डन भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा? By the system positive. on the system positive वर्क डन मतलब वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? Volume. वॉल्यूम प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, increase अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। अगर वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम घट गया तो वर्क डन विल बी इक्वल टू नेगेटिव। इज द साइन कन्वेंशन क्लियर फॉर एवरीवन? yes sir Yes, sir. कन्वेंशन क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज work done. Next one is work done by a gas. Work done by a gas in different processes. Work done by a gas in your different processes. Work done by a gas in your different processes. तो फर्स्ट वन वाला ले रहा हूं मैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या बेटा? कोरिक मतलब क्या? वॉल्यूम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वॉल्यूम यहाँ पर हो गया कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ फ्लोट,
from the first law of thermodynamics, dq is equals to du plus of your dw. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या Work done हो 0. जाएगा? तो वर्क डन हो गया 0, तो dq हो गया du के बराबर, dq हो गया du के बराबर, तो q हो गया कितना बेटा? f by 2 into n into r into your dt. तो ये हो गया dq in your isochoric process. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बात करूं, अगर मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बात करूं, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 3/2 R into your डेल्टा T. लिख सकता हूं मैं ऐसा, इसको भी डेल्टा T लिखो बेटा, क्योंकि मैंने D को Q निकाल दिया ना अपन। उसके बाद लिखा मैंने डायटोमिक। अगर मैं डायटोमिक गैस लिख रहा हूं तो Q की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5/2. NR into your डेल्टा T. क्लियर है? Yes, sir. चलो अगर इसके ग्राफ्स बता दो Yes, जल्दी sir. से मुझे। ये हो गया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, ये हो गया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो Straight line volume. इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर वॉल्यूम। तो ये ऐसा हो सकता है या ऊपर से नीचे ऐसा आ सकता है, ठीक है ना? यस सर। अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बताने के लिए बोलूं मैं आपको, तो क्या करोगे? यानी जरा नीचे लिख रहा हूं मैं इसे, कहाँ गया यार, या तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ अगर आपको पूछ रहा हूँ बिटवीन प्रेशर वर्सेस योर टेम्परेचर, तो ग्राफ कैसा होगा? सोच समझ के बोलो। प्रेशर वर्सेस योर टेम्परेचर ग्राफ कैसा होगा? PV इज इक्वल्स टू N इंटू R इंटू T। तो P बाई T इज इक्वल्स टू, P और T का ग्राफ होना है ना बेटा, तो ये हो गया NR डिवाइडेड बाई योर वॉल्यूम। तो ये कौन सा प्रोसेस है? वॉल्यूम ही कांस्टेंट है ना बेटा, तो इसमें ये पूरा कांस्टेंट हो गया। n वैसे भी कांस्टेंट है, r वैसे भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, isn't it? So in this one volume is taken as of your constant, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। So p by t क्या देगा बेटा? p by t will be equal to your tan theta, And the time. that will be equal to your m, that will be equal to your slope। तो P बाई टी का अगर मैं स्लोप लिख रहा हूँ तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दी ऑरिजिन, और ये Origin. बनेगा मुझे थीटा, एंड आई एम गोइंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू योर पॉइंट 2। तो एरो मार्क हो गया इस तरह से। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? फर्स्ट प्रोसेस क्लियर है सभी को? चलो सेकंड प्रोसेस चलते हैं जल्दी से। सेकंड प्रोसेस इज योर आइसोबारिक। आइसोबारिक, obviously what remains constant बेटा? बारिक मतलब क्या? Pressure. तो ये हो गया प्रेशर, तो यहाँ पर हो गया प्रेशर कांस्टेंट, ये हो गया प्रेशर कांस्टेंट। तो वर्क डन कैसा निकालोगे? वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर P into your dV, वॉल्यूम विल बी V1 to your V2, RS that will be प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर निकालो तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ dV, तो ये हो गया V1 से लेके V2 तक। तो ये हो गया P इंटीग्रल ऑफ dV इज नथिंग बट V, तो अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो V फाइनल Final माइनस minus V initial. तो वर्क डन हो गया मेरे पास प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन हो गया प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम पार्ट ऑफ रिलेशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस Yes, sir. फ्रॉम आइडियल गैस, from your ideal gas equation, from your ideal gas equation, ये हर जगह यूज होता है बेटा, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन ही लेके चल रहे हैं। PV is equals to NR into T लिखूं तो प्रेशर into change in volume will be equal to NR into your delta T, that is equals to NR into your, ये लिख सकता हूं मैं T final minus of your T initial। तो क्या मैं वर्क डन ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? वर्क डन इज P into delta V, so that will be equal to NR into your delta T, लिख सकता हूँ ऐसा? Yes, sir. वर्क डन इज also equal to your NR into your delta T part of relation। अब मुझे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बताओ। ये हो गया प्रेशर यहाँ पर P और ये हो गया वॉल्यूम V, तो ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। काई को मिया कई को बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? Pressure constant है ना sir? प्रेशर कांस्टेंट है ना राजा,
तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट बनेगा लाइन प्रेशर से ये आता straight है। line parallel to P x से axis. यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो आप ऐसा 1 से लेके 2 तक प्रेशर कांस्टेंट है ना, या यहाँ से यहाँ तक आ सकते हो आप 1 से लेके 2 तक ऐसा। इट शुड बी ए पैरेलल, इट शुड बी ए पैरेलल टू योर x axis, है यस कि सर। नहीं? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट वन, इसी के अंदर अब क्या करना है, अब फ्लोट को लगाना है। फ्लोट को लगाओ, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लगाओ। क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? dq is equals to your du plus of your dw। तो dq कितना हुआ? dq is equals to your, ये हो गया f by 2 into n into r into your dt प्लस ये हो गया प्रेशर into your change in volume। ठीक है, Yes, sir. तो इसको Yes, और sir. सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या बनेगा? देखो ये आराम से, dq is equals to, ये हो गया f by 2 n r into your, ये हो गया dt your p into delta v can be written as n N r delta into t. your into dt, delta t। isn't it? या dt part of relation, no problem। ठीक है ना, तो इसमें अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? nr into dt कॉमन है, सो ये हो गया nr into your dt मेरे पास कॉमन है, और ये आ गया f by 2 प्लस ऑफ योर 1 dq is equals to बना कितना? dq is equals to your nr into delta t, t final minus t initial, f2 by your f by 2 plus of your 1। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो भी लिख सकता हूँ dq is also equal to, ये हो गया f plus 2 divided by 2, लिख सकता हूँ ना, f by Yes, 2 sir. plus 2 into nr into your dt, nr into your dt, ये हो गया dq का फॉर्मूला, isn't it? So this is very important formula to be remembered in your isobaric process। isobaric process के अंदर this is very important formula, applying the first law of your thermodynamics। ये भी formula important है, W is equals to nRT और W is equals to pressure into change in volume। Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. मोनोएटॉमिक डायटॉमिक के लिए तो आपके पास F की वैल्यू मालूम है, आप मोनोएटॉमिक डायटॉमिक के लिए F की वैल्यू डाल दो, DQ की वैल्यू आपको आराम से निकल जाएगी। क्लियर है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे? नहीं Yes, sir. चलो इसका ग्राफ बता दो जल्दी से। अगर मोनोएटॉमिक होता तो क्या लिखते आप? 3 + 2 यानी 5/2। 5/2. ट्राइएटॉमिक होता तो क्या लिखते? 5 7/2. + 2 that is nothing but 7/2, लिख लोगे ना? यस सर। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, बताओ ग्राफ क्या हो जाएगा? क्या कॉमन है, क्या कांस्टेंट है बेटा? यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो Yes, PV sir. is equals to nRT, PV is equals to n into R into T। Straight line पर हम हो रहे थे। T ग्राफ निकालना है तो V by T अगर बाहर निकाला तो ये हो गया n into R डिवाइडेड बाई योर P। तो इसमें प्रेशर तो कांस्टेंट है क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, ये पूरा भी कांस्टेंट हो गया राइट नाउ पे। तो V by T तो पूरा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मतलब मान के चलो सम K, तो ये हो गया मेरे पास V is equals to K into your T। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इक्वेट करूं तो y is equals to your m into your x। ठीक है ना? Yes, sir. तो ग्राफ विल बी व्हाट? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हो गया थीटा, तो अगर ये 0.1 है, ये 0.2 है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, सो दिस विल बी द ग्राफ फ्रॉम 1 to 2। तो थीटा कितना बनेगा बेटा? tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये पूरा कितना है बेटा? स्लोप ही है ना बेटा? स्लोप Yes, विल sir. बी इक्वल Yes, टू sir. में n r डिवाइडेड बाय योर p, और स्लोप m इज नथिंग बट n r डिवाइडेड बाय p। या यहाँ पर आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ योर n into your r divided by p। क्लियर है ग्राफ सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So I hope you got a clarity about your isobaric and isochoric processes। Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Third one जल्दी से, isothermal process। Isothermal process। So what do you mean by isothermal बेटा? Thermal मतलब Temperature temperature is remaining constant, temperature is remaining constant। अगर temperature constant है, such type of a process is known as what? Isothermal process। तो इसमें work done कैसा निकालोगे? Work done is equals to integral of your P into your dV। ठीक है ना? Work done is equals to integral of your P into your dV हो गया। Can I write the P in terms of volume बेटा? From ideal gas equation, from
PV is equals to NR into your T. तो मैं P लिख सकता हूँ कैसा बेटा, NR into T divided by your V. ये वैल्यू लिखा के यहाँ पर डालो, तो ये हो गया वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल P की जगह क्या डाल सकते हो अभी, N into R into T divided by your, this will become for me your V. So यहाँ पर हो गया V into your dV. DV. इनिशियल वॉल्यूम है VI और फाइनल वॉल्यूम है VF. इसमें क्या कांस्टेंट है बताओ जल्दी से, N R और T कांस्टेंट है और इंटीग्रल हो गया ये 1/V into your dV. DV. तो मेरे पास V इनिशियल से लेके V फाइनल, तो ये हो गया मेरे पास वर्क. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आपको एक छोटा सा मैथ्स याद होगा, मैंने आपको इंटीग्रेशन में करवाया था. इंटीग्रल ऑफ योर 1/x into dx is equal Ln. to Log. ln x is known as of your what, ln x. याद है ना? Yes, तो यहाँ sir. पर वही है ना Yes, बेटा, sir. 1/v into dv कितना बन जाएगा, ln v Ln बनेगा. V. ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू n into r into t. इंटीग्रल ऑफ 1/v into dv दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x Ln into x. तो ये बन जाएगा यहाँ पर कितना बेटा, Ln V. of your x. ln of your x, x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, v. so ln of your v, तो ये हो गया लिमिट v इनिशियल और ये हो गया मेरे पास v फाइनल. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर लूं तो क्या बन जाएगा, वर्क डन इज NRT. इक्वल टू एन आर इनटू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट इज ln ऑफ योर v फाइनल माइनस ln ऑफ योर v इनिशियल. सो दिस इज ए ln b माइनस ln a के फॉर्म में है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू योर एन आर इनटू योर टी, log b माइनस log a विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, log ऑफ योर b बाय Log a, B. यानी ये हो गया B ln by ऑफ A. योर v फाइनल बाय योर v. V initial. तो ये हो गया वर्क डन, ये हो गया वर्क डन इन टर्म्स ऑफ योर लॉन पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है सभी को? इज इट Yes, क्लियर फॉर sir. Yes, एवरीवन? sir. आया सभी को वर्क डन कंडीशन? Yes, sir. डिफरेंशिएशन किसी को नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. Work done in this process can also be written as of your ln of your v final by your v initial part of relation. ln को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log में भी लिख सकते हैं ना बेटा. मैं इसको और एक फॉर्म में भी लिख रहा हूं, देखो, as p initial v initial is equals to p final v final. क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या बेटा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ ओबे होगा, बॉयल्स लॉ ना. v is equals to pv is equals to कांस्टेंट. तो यहाँ पर v फाइनल बाय v इनिशियल कैसे लिख सकता हूँ मैं, p इनिशियल बाय और p फाइनल लिख सकता हूँ क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो वर्क डन कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो, ये वर्क डन में sir. v फाइनल बाय v इनिशियल की जगह मैं प्रेशर डाल लूं. अगर प्रेशर डाल लूं तो क्या बन जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन विल बी इक्वल टू nr into p. NRT. This Ln. one will be ln of P your initial p by P initial initial by divided P by your final. p final. Clear है? Yes, sir. And remember that ln x is nothing but equal to how much beta, log Log e E. x. Clear है? तो ln के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, log लिख सकता हूँ ना. Even write in terms of your log, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, Nice, sir. isn't it? So log में अगर आंसर लिख रहे हो तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से. So log of your work done to your moving from this one will be equal to your log of your p final by your p initial or v final by your v initial लिख सकते हो. So work done is also equal to nr into your t ln of your, ये क्या पर है देखो, ln of your v final by v initial can be written as of your, this will be equal to your, this will be equal to your log of your e into your v2 divided by your v1. That is equals to your v2 divided by your v1 part of relation में लिख रहा हूँ. Or else we can write even in terms of what बेटा, V final minus P. Yeah. P initial by P the final. work done in terms of your log e. अगर log e निकालूं तो I can even write this one as w is equals to, this is very important for calculation purposes बेटा, log e value can be written as of your 2.303 log 10. तो ये बन जाएगा 2.303 n into r into t, log e के जगह ये बन जाएगा log 10 into, ये हो गया v2 divided by v1. This is your actual mathematical formula for your calculation process.
So work done is equals to log E को निकाल रहा हूं तो that will be equal to how much for me? 2.303 times of your log of your 10. Clear है? सर इधर Yes, आर की sir. वैल्यू क्या लेना है सर? क्या बेटा? आर की वैल्यू क्या लेना है सर? 8.3 होगा बेटा. ओके सर. 8.3. R is nothing but what? Universal gas constant. T is absolute temperature. अगर प्रेशर में लिख रहे हो तो ये फॉर्मूला कितना बन जाएगा? इन टर्म्स ऑफ योर प्रेशर अगर लिख रहे हो तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू 2.303 NR into your T. This one is log of your 10 into your PI by P1 divided by P2. P1 divided by your P2 part of relation. Clear है? यस Yes, सर. sir. डाउट किसी को? नहीं. Yes, No, sir. sir. डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. देख लो एक बार जल्दी से. पक्का डाउट नहीं है किसी को? नो सर. Yes, sir. चलो अब क्या करोगे? फ्रॉम फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq is equals to du plus dw. ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब क्या? du is equals to f by 2 n into r into your, this one is delta t. Delta t will become for me 0. There is no change in temperature. यस तो सर. इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0. DW. अगर इंटरनल एनर्जी 0 हो गया तो Total energy. dq will be equal to dw. DW. dq is equals to your dw, यानी heat released is equals to your work done. Heat released is equals to your how much for me? Work done for the Work given done. condition. Clear है सभी को? Yes, यस sir. सर. पक्का? यस सर. चलो वेरी गुड. सो एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं. देखो बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ P into dV. P from ideal gas equation I'm writing it as NR into T divided by V. तो NR into T divided by V into dV. NR into T कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया. Integral of 1 by V into dV. Integral of 1 by V into dV is from this basic standard formula, basic mathematics है. Integral of 1 by x into dx is nothing but equal to your ln of your x. So integral of 1 by v into dx यहाँ पर लिख दिया. तो integral of 1 by v into dv कैसे लिखोगे? ln of your x होगा. यहाँ पर x की जगह v है तो v लिख दिया मैंने, और लिमिट है v इनिशियल एंड v फाइनल. अब v की जगह क्या लिखोगे? इस v के अंदर अपर लिमिट डाल दो v फाइनल, लोअर लिमिट डाल लो v इनिशियल. तो ये हो गया ln v फाइनल माइनस ln of your v इनिशियल. तो log of your r ln of your b minus ln of your a is nothing but what? ln of your b by a. तो ये हो गया v फाइनल by v इनिशियल. ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. वॉल्यूम को मैं प्रेशर में भी लिख सकता हूं एज इट इज ओबेइंग द बॉयल्स लॉ कंडीशन. तो बॉयल्स लॉ के कंडीशन में P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल. सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ ओबे हो रहा है यहाँ पर बेटा? बॉयल्स लॉ ओबे हो रहा है. सो V फाइनल बाय V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल बाय P इनिशियल बाय P फाइनल. तो V फाइनल बाय V इनिशियल की जगह P इनिशियल बाय P फाइनल लिख लो. दिस इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म. लॉन हम लोग लॉग में भी लिख सकते हैं. दिस इज आल्सो इक्वल टू log E V2 by V1. log E में लिखना नहीं है मुझे, log 10 में लिखना है. तो दी log E वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.303 nRT log of your 10 V2 by your V1. or else in terms of your pressure लिखना है तो W is equals to 2.303 nRT log 10 P1 by your P2. These are the some of the important formulas you need to remember for your competitive examinations. Clear है? Yes, sir. इसके थोड़े एप्लीकेशन है बेटा, अभी वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी से. ओके, फर्स्ट वन बेटा, स्लोप. स्लोप कैसे लिखोगे बेटा? स्लोप इज नथिंग बट ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? dy by your dx. This is your slope graph. So if I draw the graph between
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ग्राफ कैसा बनेगा कोई बता सकता है क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पर हो गया एक पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, तो ये बन जाएगा मुझे थीटा, ठीक है ना। तो स्लोप अगर लिख रहा हूं तो स्लोप कैसा हो जाएगा इसमें बताओ। सो दिस स्लोप विल बी इक्वल टू, यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, y की जगह क्या है प्रेशर, तो ये हो गया dp डिवाइडेड बाय योर dv। D. तो स्लोप ऑफ dp बाय dv कितना होगा, अगर ये पूछ रहा है प्रॉब्लम में तो कैसा करोगे इसको। देखो बेसिकली हम लोग के पास pv इज इक्वल टू nrt है, we know the relation p into v is equals to nr into your t। ये कैलकुलेशन आप लोग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, खाली फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए मैं सिर्फ डेरिवेशन छोटा सा कर दे रहा हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। pv is equals to nrt को, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो p को कांस्टेंट रखो, सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करो, प्लस फिर सेकंड टर्म को एज इट इज रखो और डिफरेंशिएट द फर्स्ट टर्म, that is equals to your nr into your dt। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p into your dv प्लस ऑफ योर v into your dp is equals to 0। ये स्टेप समझ में आया, ये प्रोडक्ट रूल है बेटा, uv रूल, u y is equals to u into v। इसका डिफरेंशिएशन कैसा करोगे, dy by over du y is equals to how much for me, पहले u को डिफरेंशिएट करोगे, फिर इसमें देखो पर क्या कर दिया, p into v में पहले p को कांस्टेंट कर दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड टर्म को एज इट इज रख दिया, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, n कांस्टेंट है r कांस्टेंट है, फिर d को डिफरेंशिएट कर दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा, तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0। तो p into dv plus b into dp is equals to 0। तो इसमें से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, p into dv will be equal to minus of v into dp लिख सकता हूँ। तो यहाँ से dp by dv कितना आ गया, dp by dv is equals to minus of your pressure by volume आया। Yes, sir. So slope of your dp by dv क्या देगा, slope of your dp by dv will be equal to your tan theta, Minus of. and this tan theta will be equal Minus. to minus of your p by v। क्लियर है? Yes, sir. sir. हाँ बेटा, Yes, sir. dp by dv क्या देगा, देखो dp by dv here is dp by your dv is equals to minus of your tan theta, because pressure and volume है ना बेटा, pressure on y axis, volume on x axis, minus है minus of your tan theta, so dp by dv is how much for me, minus of p by v। क्लियर है? Sir, minus tan theta क्यों आता है sir? सर लंच टाइम हो गया सर, सर लंच टाइम हो गया। ओके ये तो हो गया ना बेटा, छोटा सा है बेटा, इसको खत्म कर देता हूँ मैं बेसिकली, ठीक है? क्लियर है? Sir, हाँ बेटा, tan हाँ theta बेटा, minus में क्यों है? ये p by v माइनस आया ना बेटा, यहाँ पर देखो p into dv is minus of v into dp आया ना, तो पूरे डिफरेंशिएशन टर्म्स मैंने यहाँ पर ले लिया, ये dv को उधर ले लिया, ये माइनस को इधर ले लिया, तो माइनस ऑफ p by v आया, Yes. isn't it? तो माइनस ऑफ p by v मतलब कितना, tan theta only ना, y by x, tan theta is nothing but what by y by x ही ना, Yes, sir. तो यहाँ पर y की जगह p है और x की जगह x v है, तो इसमें माइनस ऑफ tan theta लिख ले रहा हूँ, ठीक है? जी sir. Yes, sir. तो Thank you, sir. कितना है, माइनस ऑफ p by v, स्लोप ऑफ योर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इज माइनस ऑफ योर p by v। एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, ये वाइंड अप हो जाएगा, फिर एक्सटेंशन चले जाएगा, स्मॉल साइड हेडिंग एंड लास्ट वन आइसो। हाँ ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, छोटा सा है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस याद है किसी को, सेकंड ईयर के बच्चों या लॉन्ग टर्म के बच्चों को याद होना चाहिए। बल्क मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय योर के, Okay.
K is equals to your वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, याद है, माइनस ऑफ योर वॉल्यूम स्ट्रेस बाय योर वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस मतलब क्या, प्रेशर, सो इट इज माइनस ऑफ योर dp डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मतलब क्या, dv dv by v. isn't it? So this will be equal to minus of v into dp by your dv, लिख सकता हूं ऐसा। So isothermal bulk modulus is equals to this one is minus v into dp by dv कितना हो जाएगा बेटा, माइनस P by V. तो ये v और ये v चले गया, माइनस और माइनस भी चले गया, तो Minus हो जाएगा isothermal bulk modulus is equals to what, pressure, P. माइनस माइनस प्लस हो गया ना बेटा, जी जी ठीक है समझ गई। isn't it? So ये हो गया this one, and last term isothermal compressibility, एक टाइम का खाना नहीं खाए तो कुछ नहीं होता यार। चलो, isothermal bulk modulus, isothermal compressibility is represented by C, reciprocal of your isothermal bulk modulus, is known as isothermal compressibility, यानी this will be equal to how much beta, 1 by p, so compressibility is equals to 1 by p, ठीक है। Yes sir. जज़ाकल्लाह, ट्राई टू टेक केयर और आराम से खाना खा लो और खाना खाते ही रहो, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। खाते ही रहो शाम तक। Thank you, sir.